Hello everyone, my name is Ara and I am a final year student from the Delhi School of Journalism, University of Delhi. First of all, a very warm welcome to all of you, all the freshers who've taken admission in the Delhi University this year. And I know you guys are very excited, your online classes have begun and you're also in anticipation कि कब कॉलेजेस खुलेंगी एंड ऑफलाइन क्लासेस कब शुरू होंगी, आप लोग कॉलेज कब विजिट करोगे एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि वेयर आर यू गोइंग टू स्टे एंड वेयर आर यू गोइंग टू फाइंड अकोमोडेशन in the Delhi University. Now Delhi University is not entirely a residential university, तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस में हॉस्टल्स की फैसिलिटी है, बट बहुत से कॉलेजेस ऐसे भी है जहाँ पे हॉस्टल्स नहीं है और हॉस्टल्स भी सारे बच्चों को नहीं दी जाती है. So where are you going to stay here once you come to the campus? Now we know you guys are very confused, so we the students of Delhi School of Journalism have brought to you this video so that you get some help from this, and we are going to explain to you that hostels, प्राइवेट हॉस्टल्स, फ्लैट्स, पीजीज, इन सब में आप किस तरह से अकोमोडेशन ले सकते हो एंड कैसे ढूंढ सकते हो, कौन से एरियाज बेटर होते हैं एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट. वी होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग द अकोमोडेशन फैसिलिटी इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड लार्जली फोकसिंग ऑन द नॉर्थ कैंपस ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी. वी हैव मेनी स्टूडेंट्स विद अस टुडे हु आर लिविंग इन दीज फ्लैट्स, पीजीज एंड हॉस्टल्स who are going to explain to you how and where you can find these and कौन से एरियाज बेटर होते हैं, क्या फैसिलिटीज आपको दी जाती है इनमें. So let us see all of that. मेरा नाम प्रियम शुक्ला है और मैं दिल्ली के जीटीबी नगर में रहता हूँ. मेरा जो पीजी है वो मेरे कॉलेज के पास में ही है और मेरे पीजी का रेंट अंडर 10,000 रुपीज़ है. खाना पीना सब इंक्लूडेड, और जो खाना है वो पीजी में मेस के थ्रू आता है, पीजी के अंदर डायरेक्ट मेस नहीं है. और जो मेरा रूम है वो नॉन एसी है, ट्रिपल शेयरिंग, पर वहाँ पे कूलर है तो गर्मी ज़्यादा लगती नहीं है. मेट्रो स्टेशन के पास में है पीजी और आने जाने में कोई कहीं दिक्कत नहीं होती है. This is Shubhankar Tiwari. I stayed in a PG in Hudson Lane, GTB Nagar. I used to pay approximately 9,000 rupees per month for rent. It included the food and electricity charges as well. The food was served 3 times a day and it was a triple sharing non-AC room. Although it was upgradable to an AC room if the residents wanted it to be, but then it would have cost more charges as well. So yeah. Hello, I'm Somesh Agardas. I used to live in a PG at Bungalow Road in Kamla Nagar before this lockdown. So like most of the PGs in Delhi, my PG also had AC rooms because like it's too hot in the summers of course, and I had 2 roommates. Always try to get a room which has a number of roommates so that you can get a little more space always. So talking about hygienic, that's very important, and yeah, my PG was very hygienic. The janitor used to come once every day. So and yeah, I also had laundry facilities. And talking about food, like most of the PGs in northern Delhi, it also used to serve only veg food. But if you are a non-veg lover, you will have plenty of chances to taste the great cuisine, the non-veg cuisine of Kamla Nagar. So don't worry at all. Delhi University's undergraduate hostel for girls, or UGHG, is in Mukherjee Nagar, which is almost 2 kilometers away from North Campus. Buses, e-rickshaws, autos are available right outside the hostel campus. A single room is allotted to 2 students. There is no AC, however, a small balcony and a few windows does the job for proper ventilation. Laundry and mess charges are included in the rent. There are 4 meals provided in a single day. Guards are on duty 24/7, and for a hostel in Delhi, UGHG has a huge ground and an open space. UGHG also has a gym, a computer lab, and a common room in its vicinity. मेरा नाम पंचानन कुमार है और मैं साउथ कैंपस हॉस्टल में रहता हूँ. MA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, वेंकटेश्वरा कॉलेज से कर रहा हूँ. तो आपके हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है? मैं बहुत ही मतलब मेंटेन करने वाला लड़का हूँ, तो इसीलिए मुझे कोई दिक्कत, खाना हमें 4 टाइम मिल रही है और जितनी फीस है हमारी उसमें से हमें नहीं लगता है कि इसमें कुछ ख़राबी है. लेकिन मैं मेंटेन करने वाला हूँ, इसलिए 4 टाइम खाना और मेरी फ़ीस के हिसाब से सब ठीक है. अच्छा, और वहाँ पर फूड फैसिलिटी कैसी है? फूड 4 टाइम खाना मिलता है हमें. सुबह नाश्ता, शाम को चाय के साथ कुछ
समोसे या फ्रेंच फ्राइज या भेल पूरी किसी दिन मिल गए, इस तरह करके 7 दिन अलग अलग हैं तो हमें मिल जाते हैं। नाश्ते में भी अलग अलग है, पराठे तो 2 दिन मिल जाते हैं, अच्छे ही है। दोपहर का खाना बढ़िया है और रात का भी बुधवार और रविवार को पनीर मिल जाता है। मेरा नाम सौरभ कांत है और बेसिकली मेरी जो एजुकेशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है और आजकल मैं जो है कंपटीशन की तैयारी में लगा हुआ हूँ और मैं हडसन लाइन के पास में रहता हूँ। रेंट की जो बात कही गई थी कि जो मकान मालिक हैं वो रेंट आधा करेंगे या कम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो लगभग पूरा ही रेंट ले रहे हैं। जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ की लोकेशन कैसी है? लोकेशन अच्छी है। एसी नॉन एसी? कुछ बच्चे अकेले फ्लैट लेके रहते हैं और कुछ बच्चे पीजीज पार्टनरशिप में रहते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए ऐसा है कि पीजी में रहना जो है एक थोड़ा मैं कहना चाहूँ तो टेढ़ी खीर है, क्योंकि पीजी में 2 ऐसे व्यक्तियों को मिलना बहुत ज़रूरी है जिनकी जो आइडियोलॉजी हो एक जैसी हो, और कई बार होता है ऐसी आइडियोलॉजी नहीं मिल पाती है और जो अपना पर्सनल रूम लेकर के रहते हैं मेरे ख्याल से वो बेहतर है। अगर मैं बात करूं कि फूड फैसिलिटीज़ जो हैं, जो पहले एक कोविड पीरियड से पहले की बात करें तो आप यहाँ जगह जगह पर बहुत सारी चीज़ों को देख सकते थे। लोग आपको हर कोने पर चाय पीते हुए या जो भी सुविधाएं थी वो आसानी से मिल जाती थी, लेकिन आज ये सुविधाएं मिलना थोड़ा मुश्किल है। और इसी कारण कोविड के कारण हुआ क्या है कि लॉकडाउन के बाद में चीज़ें बंद हुई हैं और जो प्राइस हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। नए स्टूडेंट जो आने वाले न्यू स्टूडेंट उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो भी न्यू स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनको अपनी हैबिट में थोड़ा सा बदलाव लाना होगा। सबसे पहले जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करना होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि 12th क्लास के बाद में जो बच्चे आते हैं उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है मिलने की, और ये भारतीय कल्चर भी रहा है कि हम मेल जोल वाले व्यक्ति हैं, तो उन्हें सुधार करना पड़ेगा कि थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से अपनाएं और जो हाथ मिलाने के कल्चर है उससे थोड़ा दूर रहें, नमस्कार के कल्चर को अपनाया जाए, मास्क पहने, और जो घूमने वाला कल्चर जो अधिकतर बच्चों में देखा जाता है, क्योंकि जो 12th क्लास पास करके आते हैं उन्हें हीरोइज्म होता है, उस चीज़ को थोड़ा सा उन्हें नेगलेक्ट करना पड़ेगा और अपने स्वास्थ्य को देखते हुए सभी चीज़ों पर निर्णय लेना होगा। As you have seen in the video bites, there are so many PGs, hostels and flats in the North Campus area, which is very affordable with the price range differ, and there is also customization facility with mess facility as well nearby metro station, and that's all. Thank you.